नमस्कार सर. नमस्कार संदीप सर. Namaskar everyone. कोर्स हमारा ऑनलाइन चल रहा है, मोबाइल Shall we start, sir? Yeah, please start, please. Okay. Thank you, sir. Good afternoon, everyone. It gives me immense pleasure to welcome you all to the second day of our 8-day NEP Orientation and Sensitization program organized by Government Degree College Badaun in collaboration with UGC-MMTTC Aligarh Muslim University, Aligarh. Yesterday, we embarked on a journey to explore the transformative vision of the NEP 2020. And today, we continue to delve deeper into its principal, innovation, and implementation strategies. On behalf of the institution, I extend my warmest greeting to our esteemed speaker, respected faculty members, and enthusiastic participants who have joined us once again. Your presence and active engagement truly reflect the commitment to reshaping the educational landscape in alignment with NEP's vision. As we proceed to today's session, I would like to hand over the session to Dr. Priyanka Singh, our today's organizing co-coordinator and assistant professor of botany department, GDU, to welcome our today's chairperson as well as resource person. Dr. Priyanka Singh, please join us. Am I audible, ma'am? Yes, loud and clear, ma'am. Yes. Okay, thank you. Good afternoon, everyone. It is my pleasure to welcome you all to the second day of 8-day online NEP Orientation and Sensitization program. To guide us today, we are honored to have with us Dr. Rishabh Bharadwaj, who will be chairing the whole session. Dr. Rishabh Bharadwaj is currently working as a head of physics department at Government Mahila Degree College, Badaun. He earned his PhD from the Department of Physics and Astrophysics, University of Delhi. His research focuses on theoretical particle physics and cosmology. Recently, he was awarded the International Travel Support for Young Scientists by the Government of India. The resource person of the first session today is Dr. Ashutosh Yadav. Dr. Yadav is Director of MMTTC Hansraj College, University of Delhi. He holds a distinguished academic background and plays an active role in the scholarly community. He will deliver a lecture on the theme Research and Development. The resource person for the second session today is Dr. Mansaf, who is working as a professor in the Department of Computer Science at Jamia, Millia, Islamia, and as a young faculty research fellow at GT, Government of India, New Delhi. He will deliver a lecture on the theme Information and Communication Technology. Without further ado, I now invite today's chairperson, Dr. Rishabh Bharadwaj, to take over and lead us through the rest of the session. Thank you. Thank you, ma'am. I thank the organizers for giving me this opportunity. So, on behalf of UGC-Malaviya Mission Teachers Training Center, Aligarh Muslim University and Government Degree College Badaun, it's my immense pleasure to welcome Dr. Ashutosh Yadav ji as a resource person for the first session. I'll now formally introduce our resource person.
Dr. Ashutosh Yadav ji is currently working as an assistant professor of commerce in Hansraj College, University of Delhi. He is also completing his PhD from Faculty of Management Studies, FMS, is known to be a good, famous management institution, University of Delhi. He works in the field of Indian call, money market, monetary economics, and behavioral biases. He has published several research articles in the reputed international journals. In addition to the academic activities, he has also served in various administrative committees, such as he has served as Deputy Coordinator of Mahatma Hansraj Faculty Development Center, Hansraj College, from 2019 to present, Convener of Finance and Economics Research Cell, Convener of Finance and Investment Cell, and many more. So thank you, sir. And I'll now formally request you to start the session, and the questions can be taken in the last of the session. Over to you, sir. Thank you. Yeah, thank you so much for an elaborative introduction, Dr. Rishabh Bhardwaj. Thank you, Dr. Sanjeev. I hope my slides are visible to all of you. Yes, sir. Yes, and I'm perfectly audible as well. Okay. Thank you. Okay, so this session, the current session is going to be about basics of research and development and how and what are the various concepts that we should be acquainted with as researchers, as academicians. So for somebody who is already into research and for somebody who has to yet begin the process of research, this session is going to be a kind of an introduction to various concepts. Yeah. So just a bit about me that has already been talked about, so I'm going to skip this. So whenever we talk about research design or research as a process, as a step, so this is the model that I would want to introduce everyone to. So Maxwell's interactive model of research design. This is a framework. Let me just, no, it's fine. So this is a framework that revolutionizes how we approach the research process. Now, if we talk about traditional view, research design is often seen as a linear path with fixed steps from start to finish. However, Maxwell's model challenges this notion by recognizing that research is a dynamic, it is a complex, and it is an iterative process. And at the heart of this model, there are three critical components: research questions, research methods, and interpretations. And rather than treating these elements as separate entities, Maxwell emphasizes their interconnectedness and the need for continual dialogue and reflection throughout the research journey. Now, this model imagines research as a vibrant conversation. We start with our research questions, which guide our explorations and shape the methods we choose to employ. But there's a twist. As we delve deeper into study, there are new insights that emerge. There are new data that unfolds and perspectives shift. So Maxwell's model acknowledges this fluidity and it encourages us to adapt our research design accordingly. This model reminds us that research is not just a one-way street, but it is a dynamic process of discovery and growth. And we as researchers, we as academicians, we must be open to revisiting our question, refining our methods, and re-evaluating our interpretations as we uncover new layers of understanding. Okay, so this is the model that empowers us as researchers to navigate the complexities of our inquiries with agility and with insight. And it invites us to engage in a continuous cycle of inquiry, reflection, and refinement, which would ultimately lead to deeper insights and more robust findings. Okay, so agar hum log baat karte hain research process ki traditional sense mein, so obviously you will be able to find a lot of different research process steps that are articulated by various authors. तो कोई 5 steps बोलता है, कोई 7, कहीं पर आपको 7 steps process मिलेगा
रिसर्च का, पर ब्रॉडर जो लाइन होती है, जो अंडरलाइंग मैकेनिज्म है, वो यही होता है that we have these number of steps. Sometimes certain steps are broken down into further sub steps. But where does the process get started? The first step is identifying the research problem. So the process begins with identifying a clear and focused research problem or question, and this is what sets the foundation of the entire study. Next step, which is not a step per se, but ye parallelly across all the steps chalta hai, which is reviewing the literature. And I always say this is the step at which we should be, if we want to really excel in the research arena, this is the step where we should be dedicating our 80% of the efforts, of the total efforts that we put into research. That is the literature review. Okay? क्या प्रॉब्लम होगी, कौन सी प्रॉब्लम को कैसे आप टेस्ट करोगे, क्या हाइपोथेसिस होगा, है ना. लिटरेचर का काम सिर्फ इतना ही सीमित नहीं होता कि वो आपको ये बताए कि कितना काम हो चुका है, बट आगे क्या करना है. गैप आइडेंटिफिकेशन वो लिटरेचर में है, कौन सी मेथोडोलॉजी यूज होगी, कौन से वेरिएबल के लिए कौन से प्रॉक्सी वेरिएबल्स यूज होंगे, कौन से कंस्ट्रक्ट्स बनेंगे. Everything has its base on in the literature review. So that is also the second step, and it keeps on going. It does not stop. Once you start with literature, you do not stop reviewing the literature, referencing, going back to the literature unless you finally submitted your manuscript in certain form. चाहे वो project report हो, चाहे वो scientific publication के लिए आपने कोई research paper पे काम किया हो, literature तभी रुकता है जब आप पूरा process खत्म कर देते हैं. So researchers conduct a comprehensive review of existing literature to understand the current state of knowledge on the topic, to identify gaps, to refine the research question. Okay, and once we have reviewed a significant portion of literature, we start formulating our hypothesis, या फिर जिसको research question भी बोलते हैं. Based on the research problem and literature review, we develop hypothesis. Experimental research में hypothesis बोलते हैं, और research questions अगर हमारा descriptive correlational research है तो जो भी हम as we are aiming to test or explore. Once we have formulated our hypothesis, we have finalized our research questions, then we finalize the research design of the study. We select the appropriate research design that would align with the research objectives and hypothesis of the questions. ये experimental भी हो सकता है, correlational हो सकता है, descriptive हो सकता है, या quasi experimental भी हो सकता है. ओके, सो एक बार जब हमने डिजाइन सेट कर लिया, उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की, जो कि है सैम्पलिंग. सो वी नीड टू डिसाइड व्हाट इज गोइंग टू बी द टारगेट पॉपुलेशन. क्या हम उस टारगेट पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव सैंपल देखेंगे, क्या सैम्पलिंग टेक्निक होगी, रैंडम सैम्पलिंग होगी, नॉन रैंडम सैम्पलिंग होगी, फिर उसमें भी कन्वीनियंस सैम्पलिंग है या स्नोबॉल सैम्पलिंग है. देयर आर वेरियस सैम्पलिंग टेक्निक्स आल्सो. कई बार कन्वीनियंस सैम्पलिंग होती है कि आपने क्वेश्चन Yes, सर प्लीज ये स्लाइड शो पे कर लें सर, अपनी स्लाइड स्लाइड शो पे कर लें. I think. जी सर. Is it better? It's visible, sir. It's already visible. It's visible, sir. Yeah, because there's some issue with my slide. So जैसे स्लाइड शो होगा वो फिर शेयरिंग ऑप्शन बंद हो जाता है. I think it should be fine. It's okay. It's okay, sir. Okay. So हम सैम्पलिंग की बात करें, so there are various techniques of sampling also. रैंडम सैम्पलिंग हो गया, सैम्पलिंग हो गया, नॉन रैंडम सैम्पलिंग हो गया. जैसे एक एग्जांपल अगर हम कंसिडर करें, so कुछ क्वेश्चन, रिसर्च क्वेश्चंस या रिसर्च एरिया जैसे होते हैं जो आज भी टैबू हैं. अब जैसे अगर हम मान लो यूनिवर्सिटी कैंपस में देखना चाह रहे हैं कि स्मोकिंग कितना प्रेवेलेंट है अमंग द जनरेशन Z. Now I know as a researcher, I'm also a teacher in this university, I'm also an employee of this university, so it will be a bit difficult for me to get access to students who are smoking. So इसमें क्या होगा? Obviously snowball sampling. अब snowball sampling क्यों बोलते हैं उसको? जैसे snow का छोटा बॉल बनता है, and जैसे जैसे it trickle down the entire mountain, the snowball keeps on increasing in the size. तो ऐसे ही यहाँ पर जैसे हम अभी एक research project पे काम कर रहे थे, which was with respect to LGBT community members. Yeah, so obviously there's a lot of taboo and there's a lot of kind of judgment around the members who belong to the community. So हम लोगों ने कैसे sample इकट्ठा करना? Obviously
most of the people are still in closet and they would not want to reveal their identity or so. So we get access to one person who represents our sample. फिर उसके reference से हम दूसरे sample unit पे जाते हैं, फिर तीसरे sample unit पे, फिर उसके reference से 4 लोग और मिलते हैं. So different sampling techniques are there. Now you have to determine at this stage, before you start the data collection process, you have to determine what works for your research objective. या ऐसे स्मोकर्स का, जैसे आप एक स्मोकिंग अड्डे पर जाएंगे, वहां पर आपको 4 लोग मिलेंगे, आप उनसे पूछेंगे हाँ कि और कहाँ पर हमें एक्सेस मिल सकता है, जो हम मान लो स्मोकर्स की साइकोलॉजी समझना चाह रहे हैं. वी वांट टू एनालाइज व्हाट आर द रीजंस व्हाई दे आर engulfing or indulging in such behavior. हम ये एनालाइज करना चाह रहे हैं, उनका टेक देखना चाह रहे हैं. So we need sample for that. And again, I will tell you another example. So I was working on a research paper जहां पर I wanted to see what is the impact of personality. आपने अगर जो लोग पर्सनालिटी पे रिसर्च करते हैं उन्होंने देखा होगा, उनको पता होगा पर्सनालिटी के बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसके थ्रू पर्सनालिटी के टाइप्स पता चल सकते हैं. अब एक बहुत फेमस है मायर्स बिग पर्सनालिटी ट्रेट क्वेश्चनर, एक है बिग 5 इन्वेंटरी जिसको BFI भी बोलते हैं. सो बिग 5 इन्वेंटरी में 5 पर्सनालिटी की कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रेट्स हैं जिनके बारे में आप अगर 63-67 आइटम स्टेटमेंट्स का एक क्वेश्चनर होता है जिसको आप भरोगे तो आपको पता चलेगा आप कितने एक्सट्रोवर्ट हो, कितने इंट्रोवर्ट हो, कितने ओपननेस का क्या डिग्री है. ओसियन फैक्टर्स होते हैं, ओपननेस, कॉन्शियसनेस, एक्सट्रोवर्जन, अग्रीएबलनेस, न्यूरोटोसिज्म. ये 5 ट्रेट्स होते हैं पर्सनालिटी के. सो इस प्रोजेक्ट में वी वर टॉकिंग अबाउट व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ पर्सनालिटी ऑन बिहेवियरल बाइसेस और ससेप्टेबिलिटी टू बिहेवियरल बाइसेस. सो वी नीडेड डेटा फ्रॉम इक्विटी इन्वेस्टर्स और इन्वेस्टर्स इन जनरल. तो अब इन्वेस्टर्स का डेटा इकट्ठा करना है तो हम कहाँ पर जाएंगे? लिंक्डइन पे अप्रोच करेंगे, अपने कॉलीग्स को अप्रोच करेंगे. सो देयर आर डिफरेंट सैम्पलिंग टेक्निक्स. वहां पर जरूरी नहीं हो सकता कि हम लोगों को दिक्कत हो सैंपल इकट्ठा करने के लिए. और इतना टाइम और इतने रिसोर्सेज और इतनी एनर्जी क्यों हमें इतने एफर्ट्स इस स्टेप पर लगाने जरूरी है? क्योंकि वी आर इंडिविजुअल रिसर्चर्स, वी आर नॉट ऑर्गेनाइजेशन. सेंसस गवर्नमेंट करता है, सेंसस वो भी 10 साल में एक बार कर पाता है ना. गवर्नमेंट के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, इट हैज एक्सेस टू सच ह्यूज रिसोर्सेज, इट हैज एक्सेस टू फंडिंग. बट वी एज इंडिविजुअल रिसर्चर्स वी डू नॉट हैव, वी हैव टाइम कांस्टेंट, वी हैव रिसोर्सेज कांस्टेंट आल्सो. या सो वी नीड टू एंश्योर जिस भी पॉपुलेशन के बारे में हम रिसर्च कर रहे हैं उसका रिप्रेजेंटेटिव सैंपल होना बहुत जरूरी है. सो सैंपल रिप्रेजेंटेटिव तब होगा जब अच्छी जो सैम्पलिंग टेक्निक है वो सूट करती होगी हमारे रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स. So yeah, there can be an entire lecture or entire unit on sampling, but yeah, this is a bit about it. Yeah. फिर जब हमने सैम्पलिंग डिजाइन कर लिया कि हमारा टारगेट पॉपुलेशन क्या होगा, हमारा सैंपल कैसा होगा, then we move on to the next step of the research process, that is data collection. And this stage involves collecting data using either standardized instruments या फिर सर्वेस होते हैं. जैसे आप लोग रेस्टोरेंट जाते हैं, फीडबैक होता है, वहां पे लिकट स्केल होता है, आपसे पूछा जाता है how satisfied were you with the service. आपको 1 to 5 पे रेट करना होता है, जहां पर 1 represents highly dissatisfied and 5 represents highly satisfied. So that is a Likert scale. 5 point Likert scale होता है, 3 point Likert scale होता है, 7 point, 9 point, 11 point. या सेशन के आप जो लोग FDPs अटेंड करते हो, रिफ्रेशर कोर्सेज अटेंड करते हो, उनके जो फीडबैक होते हैं वहां पे पूछा जाता है रिसोर्स पर्सन को रेट करो, आप ऑर्गेनाइजिंग को रेट करो. सो अगेन दैट ऑल इज लिकर्ट स्केल डेटा. थोड़ी देर में हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ स्केल की भी. ओके, सो in this step we have to ensure कि हम डेटा कलेक्ट कैसे करेंगे. Now there are 2 sources of data collection, primary sources and secondary sources. ठीक है. So primary sources is जो first hand हम इकट्ठा करते हैं, जैसे क्वेश्चनर के थ्रू डेटा इकट्ठा किया या पर्सनल इंटरव्यूज के थ्रू डेटा इकट्ठा किया. Secondary sources on the other hand are the ones जो ऑलरेडी कलेक्ट हो गई है. जैसे अगर मान लो हम लोग GDP का डेटा चाह रहे हैं, उस पर काम करना चाह रहे हैं, so that is already available with the RBI's database on Indian economy. MOSPI का डेटा है, वर्ल्ड बैंक और IMF बहुत सारा मल्टी कंट्री डेटा बेसिस है उनके पास. फाइनेंशियल इंक्लूजन की अगर हम बात करें तो ये सारे सेकेंडरी डेटा हो जाते हैं. किसी कंपनी की एनुअल रिपोर्ट से आप फिगर्स एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, बैलेंस शीट से, रियूटर्स का डेटाबेस है. सो ऑल दीज आर सेकेंडरी सोर्सेस. सो अगेन डिपेंडिंग अपॉन व्हाट योर रिसर्च ऑब्जेक्टिव इज,
what are the variables that you're going to study, उसके बेसिस पर हम डिटरमिन करते हैं कि हमारा डेटा कलेक्शन प्रोसेस कैसा होगा. अब क्वेश्चनर भी हमने फाइनल कर लिया, प्राइमरी डेटा कलेक्शन होगा ये भी हमने डिटरमिन कर लिया, उसके बाद कैसे डेटा कलेक्ट होगा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना. अगर आप प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और आपके पास प्रोजेक्ट में रिसोर्सेज है, फंडिंग है, सो यू विल हैव फील्ड इन्वेस्टिगेटर्स, यू विल हैव रिसर्च असिस्टेंट्स हु विल हेल्प यू कलेक्ट द डेटा. बहुत सारे डेटाबेसेस भी हैं जहां पर ऑलरेडी प्राइमरी डेटा इकट्ठा हुआ होता है, आप उसको यूज करते हो, बट देन दैट विल बी सेकेंडरी डेटा फॉर यू. आप क्वेश्चनर के थ्रू कर रहे हैं, आप क्वेश्चनर इन पर्सन एडमिनिस्टर कर रहे हो, या फिर आप फोकस ग्रुप डिस्कशंस को एनालाइज करना चाहते हो, ऑब्जर्वेशनल स्टडीज हैं कि आप ऑब्जर्व कर रहे हो, वहां पर आपको एक ही इंटरव्यू ही रखना पड़ेगा. So depending upon the kind, the nature of the research question that you have at hand. कुछ लोग LinkedIn के through questionnaires भेजते हैं, Google form के through, या Qualtrics हो गया. So all these are instrument creating software that we have. Once we have collected the data, the next step is data analysis. Okay, so we use various statistical technique. ना पहले होता था कि सिर्फ नंबर्स को हम एनालाइज कर पाते थे, बट अब हमारे पास ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो वर्ड क्लाउड बना देते हैं, थीमेटिक एनालिसिस कर देते हैं, जैसे एनवीवो सॉफ्टवेयर है जो सेंटिमेंट एनालिसिस भी कर देगा. ट्विटर पे कितने ट्वीट्स हो रहे हैं उसके बेसिस पर हम लोगों के पास सेंटिमेंट्स एनालिसिस के सेंटिमेंट इंडाइसेस बन चुके हैं. आप कोई भी पर्सनल इंटरव्यू है जहां पर आपने N10 लिया, 10 लोगों का इंटरव्यू, पर्सनल इंटरव्यू लिया, with the transcripts you can upload that, you can analyze that, you can have thematic analysis out of that. MathsQDA एक सॉफ्टवेयर है जो ये करता है, NVivo एक सॉफ्टवेयर है ये करता है, वॉस व्यूअर भी बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस में हेल्प करता है. सो डिपेंडिंग अपॉन व्हाट इज द नेचर. अब जैसे फाइनेंस में और इकोनॉमिक्स में जो लोग पैनल डेटा पे काम करते हैं उनके लिए ईव्यू सॉफ्टवेयर, उनके लिए स्टेटा सॉफ्टवेयर और आर सॉफ्टवेयर बेटर है. फिर जो लोग टाइम सीरीज पे काम करते हैं उनके लिए ईव्यू सॉफ्टवेयर बेटर होता है, या फिर आर अगेन. और जो लोग प्राइमरी डेटा पे वो एसपीएसएस पे काम करेंगे, स्मार्ट पीएलएस पे काम करेंगे. और जो लोग ये क्वालिटेटिव नेचर का जो डेटा होता है, अगेन हम बात करेंगे व्हाट इज क्वांटिटेटिव एंड व्हाट इज क्वालिटेटिव इन अ बिट, पर जो क्वालिटेटिव डेटा होता है जैसे इंटरव्यूज हो गए, ओपन एंडेड क्वेश्चंस हो गए, उनके लिए हमारे पास MathsQDA, NVivo, Atlas.ti ये सारे सॉफ्टवेयर हैं. सो दैट ऑल कम्स इन डेटा एनालिसिस. वंस वी हैव एनालाइज द डेटा, द नेक्स्ट स्टेप इज टू इंटरप्रेट द फाइंडिंग्स, है ना. अब सॉफ्टवेयर के साथ तो क्या होता है, गार्बेज इन गार्बेज आउट, है ना. अब अगर मैं एक्सेल में जाऊं और रिग्रेशन रन करूं दो ऐसे वेरिएबल्स पे कि आज के एफडीपी की अटेंडेंस का इम्पैक्ट मेरे स्टूडेंट की परफॉर्मेंस पे, चलो ये तो फिर भी बहुत फारफेच्ड होगा. आज के एफडीपी की अटेंडेंस का डेटा मैंने लिया और मैंने डेटा लिया कि आज हंसराज में कितने स्टूडेंट्स आए हैं. अब इन बातों को कोई रिलेशन नहीं है, पर अगर हम एक्सेल में डेटा डालेंगे, उस पर रिग्रेशन रन करेंगे, तो कोफिशिएंट हो सकता है सिग्निफिकेंट आ जाए और हाई भी आ जाए, है ना. सो ऐसे रिलेशंस को हम क्या बोलते हैं, स्पूरियस रिग्रेशन, स्पूरियस कोरिलेशन बोलते हैं. इसीलिए आई वाज टेलिंग यू व्हाई लिटरेचर रिव्यू इज इंपॉर्टेंट. इसी वजह से कि जो भी हम हाइपोथेसिस रिसर्च क्वेश्चन फ्रेम करेंगे उसके पीछे ग्राउंडेड थ्योरी का होना जरूरी है, लॉजिक का होना जरूरी है, रीजनिंग का होना जरूरी है. और वो सब कहाँ पर अवेलेबल है, वो लिटरेचर में अवेलेबल है. So once we have analyzed the data, we have the findings at hand, we interpret those findings. We interpret the result of data analysis in the context of the research question. क्या हमने जो hypothesis set की थी, are we able to prove it or not? We assess the significance of the findings. We try to identify if there are certain patterns or there are relationships, and we draw conclusions based on that data. And finally, once we have interpreted the findings, we report our data, we present our findings. अब conference अगर हमारा objective है तो हम PowerPoint के through, poster presentation के through, अगर हम report किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे तो रिसर्च रिपोर्ट की फॉर्म में, और अगर हम किसी रिसर्च पेपर पब्लिकेशन के लिए काम कर रहे थे तो जो जर्नल का साइंटिफिक फॉर्मेट होगा मैन्युस्क्रिप्ट के लिए वो, और हम ये सब रिपोर्ट करेंगे क्या इम्प्लीकेशंस है हमारी स्टडी के, थ्योरी के लिए, प्रैक्टिस के लिए, पॉलिसी के लिए. वी विल आल्सो रिपोर्ट वेदर द हाइपोथेसिस और द थ्योरी दैट वी सेट आउट टू अचीव और अकम्प्लिश इज सपोर्टेड और नॉट सपोर्टेड. We provide answer to our research questions that we initially set out to achieve. We consider alternative explanation for the findings कि हमारी findings जो आई है वो क्यों आई है, what could be the plausible underlying reasons for that. And we also
थ्रो सम लाइट ऑन द जनरलाइजेबिलिटी ऑफ द फाइंडिंग्स, कि हमारी जो फाइंडिंग्स हैं हम उनको कितना जनरलाइज कर सकते हैं. Now moving on, so these are the broader steps of research. Obviously आप देखोगे बहुत सारे अलग अलग ऑथर्स ने 4 स्टेप, 5 स्टेप, 7 स्टेप्स, 11 स्टेप्स, बट दीज आर द मेजर स्टेप्स. पॉसिबल सीक्वेंस ये हो सकता है कि आप एलआर करो, फिर आप फॉर्मुलेट करो, फिर डिजाइन करो, फिर रिसर्च कंडक्ट करो. सॉरी, just another way to express the research process. Now, if we come to the methodology part, first we are going to talk about the different types of data. अब एक डेटा तो जो मैंने बताया प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ द सोर्स ऑफ डेटा, सोर्स और ऑन द नेचर ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा. अगर आप फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो और खुद कर रहे हो तो वो प्राइमरी डेटा बन जाएगा. जैसे सेंसस हो गया, एनएसएसओ का डेटाबेस हो गया, अब ये गवर्नमेंट के लिए प्राइमरी डेटा है, पर क्योंकि आई एम यूजिंग इट फॉर माई रिसर्च but it has not been collected by me, it will still be a secondary data for me. Okay, so एक classification data का है on the basis of the collection methods. Another type, we can say categorization of data type is on the basis of measurement, कि हम उसको कैसे measure कर रहे हैं. The first is nominal data. And we have 4 categories under this categorization: nominal, ordinal, interval and ratio. Now nominal data represents those categories या फिर label बोल सकते हैं जहां पर कोई inherent order या ranking नहीं है. Okay, ये mutually exclusive categories हैं और they cannot be mathematically ranked or ordered. जैसे gender हो गया, male और female exclusive है, either you can be a male or you can be a female. Marital status, either you can be married or you can be single or you can be divorced. कलर्स हैं, या तो रेड होगा या ब्लू होगा या ग्रीन होगा, आप इनको रैंक नहीं कर सकते हो, आप इनको ऑर्डर नहीं कर सकते हो. सो ऐसा डेटा जो कि रिप्रेजेंट करता है कैटेगरी या लेबल जहां पर कोई इनहेरेंट ऑर्डर नहीं है, कोई रैंकिंग नहीं है. एंड प्लीज नोट, हम प्रेफरेंस की बात नहीं कर रहे हैं, हम ऑर्डर की बात कर रहे हैं. कलर्स प्रेफरेंस के बेसिस पर आप रैंकिंग दे सकते हो, है ना, पर हम ऑर्डर की बात कर रहे हैं, इनहेरेंट ऑर्डर, इनहेरेंट रैंकिंग, दैट रेड इज बेटर देन ब्लू, ब्लू इज बेटर देन ग्रीन, ये नहीं बोल सकते हम. सो सच काइंड ऑफ डेटा आर नोन एज नॉमिनल डेटा. ठीक है. ऑर्डिनल डेटा इससे एक लेवल ऊपर है, जहां पर कैटेगरीज हैं पर वहां पर ऑर्डर और रैंकिंग पॉसिबल है. ठीक है. जैसे क्वालिफिकेशन लेवल, हाई स्कूल, सेकेंडरी स्कूल, कॉलेज, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, प्रोफेशनल डिग्री, पीएचडी, एमफिल. सो यहाँ पर हमें पता है पीएचडी इज मोर क्वालिफाइड देन अ पोस्ट ग्रेजुएट, अ पोस्ट ग्रेजुएट इज मोर क्वालिफाइड देन अ ग्रेजुएट, ग्रेजुएट इज मोर क्वालिफाइड देन अंडर ग्रेजुएट एंड सो ऑन. सो यहाँ पर कैटेगरीज हैं पर रैंकिंग भी पॉसिबल है. पर ऑर्डिनल डेटा में रैंकिंग पॉसिबल है, कैटेगरीज है, पर जो इंटरवल है दो कैटेगरीज के बीच में वो या तो यूनिफॉर्म नहीं है या फिर हम उसको क्वांटिफाई नहीं कर सकते. जैसे हम ये नहीं बोल सकते कि जो डिफरेंस पीएचडी और पोस्ट ग्रेजुएट में है वही डिफरेंस पोस्ट ग्रेजुएट और ग्रेजुएट में है. तो रैंकिंग इज पॉसिबल, कैटेगराइजेशन इज पॉसिबल, बट जो डिफरेंस है दो कैटेगरीज का वो यूनिफॉर्म और क्वांटिफिएबल नहीं है. जैसे हम ये बोल सकते हैं ना, 5 साल के बच्चे में और 4 साल के बच्चे में जो एज गैप है वही एज गैप बराबर है एक 26 साल के युवक में और एक 25 साल के युवक में. दोनों का एक एक डिफरेंस है. सो 1 साल वहां पर और 1 साल यहाँ पर इज सेम, पर हम ऐसा ऑर्डिनल डेटा के लिए नहीं बोल सकते. फिर इससे एक और स्टेप ऊपर होता है इंटरवल डेटा, जहां पर सारी प्रॉपर्टीज होती हैं ऑर्डिनल की और नॉमिनल की. मतलब वहां पर कैटेगराइजेशन है, वहां पर रैंकिंग भी पॉसिबल है, और इसके अलावा वहां पर जो इंटरवल के बीच जो डिफरेंस है दो कैटेगरीज के बीच में वो भी कंसिस्टेंट है या यूनिफॉर्म है. ओके, परंतु वहां पर जो इंटरवल है दैट विल लैक अ ट्रू 0 पॉइंट. मतलब रेशियो या फिर मीनिंगफुल डिफरेंस हम वैल्यूज में नहीं कैलकुलेट कर सकते. एग्जाम्पल टेम्परेचर, जैसे टेम्परेचर इज मेजर्ड इन सेल्सियस और फ़ारेनहाइट, राइट. तो वहां पे 0 का मतलब ये नहीं है कि देयर इज नो टेम्परेचर एट ऑल, बट इट इज एन आर्बिट्रेरी पॉइंट. ओके, ऐसा तो नहीं होता ना कि 0 डिग्री टेम्परेचर पे क्लाइमेट एग्जिस्ट ही नहीं करता. ओके, बट इट इज एन आर्बिट्रेरी पॉइंट. ओके,
उसके बाद जो लास्ट हाईएस्ट लेवल ऑफ डेटा काइंड है ऑन द बेसिस ऑफ द मेजरमेंट इज रेशियो डेटा। अब रेशियो डेटा में सारी इंटरवल की प्रॉपर्टी है, नॉमिनल ऑर्डिनल की प्रॉपर्टीज है, और यहाँ पर ट्रू जीरो पॉइंट है। मतलब हम रेशियोज भी कैलकुलेट कर सकते हैं, हम मीनिंगफुल डिफरेंसेस वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर जीरो का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ द एट्रीब्यूट बीइंग मेजर्ड। ओके, एग्जाम्पल हाइट, वेट, एज, इनकम। अगर जीरो इनकम है तो मतलब है ही नहीं इनकम, आर्बिट्ररी पॉइंट नहीं है वहां पर। हाँ, 10,000 इनकम है तो 10,000 इनकम है, राइट? सो व्हाई डू वी वांट टू understand the categorization of data? Because it determines the appropriate statistical analysis. अब जैसे हमारे डेटा में इतने मेल्स हैं और इतने फीमेल्स हैं, अब हम इसका एवरेज तो नहीं निकाल सकते ना, हम फ्रीक्वेंसी लगा सकते हैं। सो कौन सा मैथमेटिकल अलजेब्रिक फंक्शन या स्टैटिस्टिकल टेस्ट हम कौन से टाइप ऑफ डेटा पे लगाएंगे, इस पे डिपेंड करेगा। क्योंकि आप जो रिसर्च पेपर्स देखते भी हो या पब्लिश होते हैं, आप वहां पर देखोगे डेमोग्राफिक वेरिएबल्स का हमेशा फ्रीक्वेंसी काउंट दिया होता है समरी स्टैटिस्टिक्स में। आप रिग्रेशन नहीं रन करते हो। यस, सो अंडरस्टैंडिंग द टाइप of data is crucial as it determines the appropriate statistical analysis and methods that can be applied to the data set. Each type of data requires different statistical techniques for analysis and interpretation. कौन सा regression method लगेगा? अगर categorical variables हैं, ऐसा नहीं है कि regression लग ही नहीं सकता, लग सकता है बिल्कुल, पर logic probit लगेगा। Yes, simple regression नहीं, OLS नहीं लगाएंगे उस पे। So that is why it is important to understand what are the different types of data that we're dealing with. ओके, अच्छा, थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव स्टडी की। सो क्वांटिटेटिव समझ में आता है जिसमें बहुत सारे नंबर्स की बात हो रही है, पर अभी क्या हो रहा है, बहुत सालों से हम लोग क्या करते आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल देयर आर स्टडीज, जैसे हम बिग 5 पर्सनालिटी की बात कर रहे थे। अब किसी से हम पूछेंगे आप एक्सट्रोवर्ट हो, आप इंट्रोवर्ट हो, आप ओपननेस हो, आप अग्रीएबल है हो या नहीं हो, तो ये बहुत डायरेक्ट क्वेश्चंस हो जाते हैं। या हम किसी से पूछे आपकी एकेडमिक इंटीग्रिटी का क्या लेवल है। These are the questions which cannot be answered directly or measured directly. हम किसी से पूछे आप कितने ऑनेस्ट हो, so honesty cannot be quantified. Yes, it is an abstract concept. What honesty can mean to me can be different for you always. और एक टाइम पे मेरा ही perception with respect to the honesty can be different from my perspective say 5 years down the lane. क्या इंटीग्रिटी की डेफिनेशन। सो जो ये एब्स्ट्रैक्ट मेजर होते हैं, है ना, जो सब्जेक्टिव होते हैं नेचर में, हम इनको क्वालिटेटिव वेरिएबल्स बोलते हैं बिल्कुल, बट रिसर्चर्स हैव फिगर्ड आउट अ वे टू क्वांटिफाई दीस क्वालिटेटिव वेरिएबल्स। है ना, जैसे हम पर्सनालिटी के इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहे थे, हम हर्डिंग बिहेवियर की बात करते हैं, या हम सेल्फ एस्टीम की बात करते हैं, हम मूड की बात करते हैं। ऑल दीज कैन बी मेजर्ड, देयर आर स्केल्स टू मेजर दीज, एंड दीज स्केल्स बेसिकली उनका एनालिसिस जो है वो स्टिल क्वांटिटेटिव है। अगर हम किसी की बैंक का डेटा उठाते कि बैंक्स का प्रॉफिट कितने पिछले 50 सालों में, इंडियन नेशनल बैंक्स का जो है डेटा उठाया, वो ऑब्वियसली क्वांटिटेटिव है। पर अगर हम कोई स्टडी कर रहे हैं जहां पर हम डेटा क्वेश्चनर के थ्रू कलेक्ट कर रहे हैं और नंबर्स हैं वहां पर, स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनर है, दैट विल स्टिल बी क्वांटिटेटिव इवन इफ the variables or the constructs are qualitative in nature. अब क्वालिटेटिव रिसर्च जो डिजाइन होता है या रिसर्च स्टडीज होती है, क्वालिटेटिव स्टडीज, वहां पर होता है कि वहां पर कोई प्री डेवलप्ड क्वेश्चन नहीं होगा सर्वे में, कोई इंटरव्यू गाइड नहीं होगा, ओपन एंडेड क्वेश्चन होंगे, आपको क्या लगता है, क्या रीजन है, प्री डेवलप्ड क्वेश्चंस होते हैं, but they may be administered in no established order and they may be added depending upon the circumstances, depending upon the interaction that we're having, and there are open ended observations. जैसे आप कोई भी डिस्क्रिप्टिव या इंटरव्यू का एनालिसिस करोगे वो क्वालिटेटिव होगा। आपने 5 मान लो मेरे को जेनजी का जो जनरेशन जेड है उनका मुझे पर्सपेक्टिव और टेक समझना था कि इंस्टाग्राम की रील से वो कितना इन्फ्लुएंस होते हैं। सो ऑब्वियसली मुझे उनसे ही बात करके पता चलेगा। सो मैंने क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइन किया, मैंने फोकस ग्रुप 10 फोकस ग्रुप्स बनाए 5-5 बच्चों के, और वो फोकस ग्रुप को मैंने एज अ ग्रुप डिस्कशन लीड किया। अब उसके एनालिसिस को हम क्वालिटेटिव बोलेंगे क्योंकि वहां पर जो रिस्पॉन्सेज आएंगे वो स्पेसिफाइड नहीं है,
जैसे MCQ बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं फीडबैक फॉर्म्स में, हाउ सेटिस्फाइड यू आर का जैसे हम एग्जांपल ले रहे थे, वहां पे 1 चूज कर सकता है, 2 चूज कर सकता है रेस्पोंडेंट, 3 कर सकता है, 4 एंड सो ऑन, या तो वो क्वांटिटेटिव है, पर ये क्वालिटेटिव है। ऑब्जर्वेशन क्वांटिटेटिव में स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशंस होते हैं, प्री डिटरमिन्ड आइटम्स होते हैं जिसकी हम फ्रीक्वेंसी देख सकते हैं, ड्यूरेशन देख सकते हैं, अकरेंस देख सकते हैं, पर क्वालिटेटिव में ऐसा नहीं है, ओपन एंडेड ऑब्जर्वेशंस हैं। सो वहां पर हमारा ऑब्जेक्टिव एनालिसिस का ये होता है कि हम थीम्स आइडेंटिफाई कर सकें, हम पैटर्न्स आइडेंटिफाई कर सकें, हाँ, दैट इज व्हाट वी एस्पायर टू डू इन क्वालिटेटिव। उसके अलावा ट्रायंगुलेशन भी बोलते हैं इस अप्रोच को, जो आजकल बहुत फेमस है, और बहुत सारे रिलायबिलिटी और वैलिडिटी जो कंसर्न्स होते हैं उसका आंसर ट्रायंगुलेशन से मिलता है। और मैं आजकल नहीं बोलूंगा, बट या फ्रॉम लास्ट 2 decades वी हैव स्टार्टेड यूजिंग मिक्स्ड मेथड रिसर्च। मिक्स्ड मेथड रिसर्च मतलब हम क्वालिटेटिव से भी उसका अच्छा पार्ट उठाएंगे और क्वांटिटेटिव से हम, सो बेसिकली क्वालिटेटिव से हम फिगर आउट करना चाहेंगे व्हाई समथिंग इज हैपनिंग, अंडरलाइंग रीजन क्या है, प्लॉजिबल कॉजेस क्या है, और क्वांटिटेटिव से हम रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश करना चाहेंगे। And this approach is known as triangulation. Okay, what happens, what is the outcome, ये quantitative में पता चलेगा, पर why is something happening, how does it happen, perspective क्या है, take क्या है, ये सब हमें qualitative से पता चलेगा। Okay, so this is known as mixed method research. कुछ सर्वेज और डिजाइन की बात कर रहे थे हम लोग, कैसे डिजाइन करने चाहिए, ओनली 1 measure 1 concept 1 per question, we should not write questions to solicit a specific response, ऐसे कुछ हमें क्वेश्चंस नहीं पूछने चाहिए जिससे हमारा जो आंसर होगा, डू यू थिंक यू आर डिसऑनेस्ट, अब मैं किसी से ऐसे क्वेश्चन पूछूं तो कोई भी नहीं बोलेगा ना ये बात तो कि हाँ हम डिसऑनेस्ट हैं, so ऐसे डायरेक्टली क्वेश्चंस नहीं होने, ऑब्वियसली इसमें सारे रिस्पोंडेंट का आंसर जो है नो आएगा, सो देयर शुड बी इनडायरेक्ट क्वेश्चंस, बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए, जो रिस्पॉन्स की कैटेगरीज हैं वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव होनी चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन शुड बी टैक्टफुल एंड शुड नॉट इन्वोक अ सोशल स्टिग्मा, लेबलिंग नहीं हो, जजमेंट बायसनेस ना हो, फिल्टर क्वेश्चन जरूर रखो, so that respondents can be directed to successive questions based on what they respond. जैसे I was telling you about the example of a research project that I was working on, जहाँ पे मुझे सिर्फ इन्वेस्टर्स का डेटा चाहिए था, तो हम लोगों ने क्या किया, ये फिल्टर आउट करने के लिए और आउटलायर्स को और अनएंगेज्ड रिस्पॉन्सेस को हटाने के लिए भी हमने एक फिल्टर क्वेश्चन डाल दिया, डू यू इन्वेस्ट इनटू स्टॉक मार्केट, तो जिसने यस किया उसी का ही हम रिस्पॉन्स एनालिसिस के लिए लेकर जाएंगे, जिन्होंने नो किया और फिर भी बाकी क्वेश्चनर भर दिया होता है ना, तो वो ऑप्शन अलाउइंग नहीं करेगा, सो यू कैन पुट सच काइंड ऑफ फिल्टर क्वेश्चंस आल्सो। और जो डेमोग्राफिक क्वेश्चंस होते हैं, आपका नाम, आपकी इनकम ग्रुप, आपका एज ग्रुप, ये सारे क्वेश्चंस को हम एक क्लब में पुट करते हैं, दैट इज नोन एज डेमोग्राफिक क्वेश्चंस। तो यूजुअल प्रैक्टिस होती है कि इनको या तो स्टार्टिंग में डालते हैं या बाद में डालते हैं। अब इस बात पे भी बड़ी एकेडमिक डिबेट है whether they should be put at the starting or towards the end. Okay, and then we also have to be aware of the respondents who do not like to answer some type of questions, जैसे age, income, organization, budget, ये सब हम कोई भी exact figure नहीं बताना चाहेगा। So it is always advisable कि हम ऐसे questions के लिए ग्रुप बना दें, इनकम लेस देन 5 lakhs, 5 to 7 lakhs, 7 to 8 lakhs, and so on. So rather than asking certain questions, specific answers to these questions, we should have groups, categories. Okay, yeah, this is something that we've already discussed. Yeah, so problem in surveys. अब surveys की बात कर रहे हैं तो research instruments की बात कर रहे हैं, questionnaire की बात कर रहे हैं, poor sampling could be there, poor question design, हाँ ढंग से wording नहीं किए हैं, incorrect या biased responses आए हैं, unengaged responses होते हैं, so obviously there are ways to deal with it. जैसे I'll show you towards the end of the session. So what are the things that we should keep in mind when we formulate a questionnaire? ये अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ quantitative study analysis की. So we need to decide what is the purpose, what is the objective, what is the research question, क्या population होगा, क्या sample होगा, कैसे हम आइटमाइज करेंगे टॉपिक्स को, कंस्ट्रक्ट्स को, कॉन्सेप्ट्स को, फिर कौन कौन से टाइप का स्केल होगा, फिर हम क्वेश्चनर आइटम लिखेंगे, फिर हम चेक करेंगे whether each research question has been covered or not. और अब क्योंकि हम इंडिविजुअल रिसर्चर्स हैं and we have constraints with respect to time, with respect to the resources, so अब मैं एक
अपने क्वेश्चनर को लेके मार्केट में 700 का डेटा इकट्ठा करूं 6 महीने लगा के, और 6 महीने बाद पता चलता है जब हम, क्योंकि डेटा कलेक्ट हो गया उसी के बाद हम एनालिसिस कर सकते हैं, पर एनालिसिस में पता चल रहा हमारे जो रिलेशनशिप्स है वो सिग्निफिकेंट ही नहीं आ रही है, वैल्यूज नहीं सही आ रही है ना। सो मेरा सारा 6 महीने की मेहनत जो डेटा कलेक्शन में लगाया, अपने कॉन्टैक्ट्स, अपने रिसोर्सेज यूज करे, वो सब वेस्ट हो गया। सो इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल टू पायलट द क्वेश्चनर, पायलट स्टडी करो, पहले 50 का सैंपल इकट्ठा करो, उसको एनालाइज करो, उसकी रिलायबिलिटी और वैलिडिटी चेक करो, एंड ओनली देन गो फुल फ्लेज्ड कलेक्शन मोड में। Okay, and then once we have done the pilot of the questionnaire, we refine our statements. हम लोगों ने फेस वैलिडिटी चेक करी, एक्सपर्ट्स, चाहे 2 एक्सपर्ट से बात की हमने कि आपको क्या लगता है क्वेश्चनर कैसा है, जो हम पूछना चाह रहे हैं, जानना चाह रहे हैं, वो क्वेश्चनर से पूछा जा रहा है नहीं। दिस इज नोन एज फेस वैलिडिटी। These are weaker test of validity which we do at the pilot stage. और जब सब कुछ हमारा पायलट स्टेज पर ठीक लग रहा है हमें, तो ही हम अपना क्वेश्चनर फुल फ्लेज्ड मोड में एडमिनिस्टर करें। ओके, सो अब क्वेश्चनर्स की बात आती है, तो क्वेश्चनर कैन बी either completely structured or semi structured or unstructured questionnaire or mix of all these three. अब जैसे नाम से ही पता चल रहा है स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनर, क्योंकि स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनर मतलब जहां पर रिस्पॉन्सेज जो हैं वो स्पेसिफिक ही आएंगे। जैसे हम बात कर रहे थे हाउ सेटिस्फाइड यू आर विद द सर्विस ऑफ दिस रेस्टोरेंट, तो वहां पर रिस्पोंडेंट के पास 5 ही विकल्प चूज करने का ऑप्शन है, 1 2 3 4 5। 5 का मतलब सबसे ज्यादा सेटिस्फाइड, 1 का मतलब सबसे ज्यादा डिससेटिस्फाइड। सो वो एक स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनर हो गया। अनस्ट्रक्चर्ड, तो ऐसे क्वेश्चनर में लार्जर, अगर हमारी रिक्वायरमेंट है सैंपल की लार्जर, द मोर स्ट्रक्चर्ड एंड क्लोज्ड एंड न्यूमेरिकल द क्वेश्चनर विल हैव टू बी। क्योंकि अब सोचो 500 लोगों का इंटरव्यू लिया हम लोगों ने, हर इंटरव्यू 40 से 45-55 मिनट तक चलेगा, उसको एनालिसिस करना 500 लोगों का कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं कर पाएगा तो इट विल बी टू वैरी। सो इसीलिए अगर लार्जर सैंपल साइज होगा तो हमें स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनर के थ्रू ही डेटा इकट्ठा करना पड़ेगा, और जितना स्मॉलर होगा उतना क्वेश्चनर अनस्ट्रक्चर्ड, लेस स्ट्रक्चर्ड होगा, ज्यादा ओपन होगा, वर्ड बेस्ड होगा। ओके, सो स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू सेट अप, but then very short time to process and analyze. Open-ended questionnaire उनको सेट करने में कम टाइम लगता है, लेकिन उनको प्रोसेस करने में और एनालाइज करने में बहुत टाइम लगता है। इसीलिए आप देखोगे जितने भी रिसर्च पेपर्स जो पब्लिश्ड हैं अच्छी जगहों पे, एमराइल पे, एल्सेवियर पे, साइंस डायरेक्ट पे, एटलीस्ट सोशल साइंसेस के पेपर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एक्सपेरिमेंटल साइंसेस जो साइंसेस वाले करते हैं, यहाँ पर सोशल साइंसेस में, कॉमर्स में, इकोनॉमिक्स में, आर्ट्स में जो जो अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनर का जो डेटा होता है, वहां पर 30 का सैंपल इज कंसिडर्ड टू बी अ वेरी गुड सैंपल। आप 30 लोगों का इंटरव्यू लो, आप उसका एनालिसिस करो, you will be able to publish the paper in a very good reputed journal of a reputed publishers. लेकिन अगर हम क्वांटिटेटिव डेटा की बात करते हैं तो 10 साल का डेटा अगर डेली बेसिस पे लोगे, अगर हम टाइम सीरीज डेटा की भी बात करेंगे तो वो भी कम होगा। अगर हम क्वेश्चन की बात करेंगे तो 400-500 का सैंपल देखने को मिलेगा आपको पब्लिश पेपर्स में। सो दैट इज व्हाई वी से द लार्जर द साइज ऑफ द सैंपल, द मोर स्ट्रक्चर्ड एंड क्लोज्ड एंड न्यूमेरिकल द क्वेश्चनर विल हैव टू बी, एंड द स्मॉलर द साइज ऑफ द सैंपल, द लेस स्ट्रक्चर्ड एंड मोर ओपन एंड वर्ड बेस्ड क्वेश्चनर वुड बी। ओके, सो क्वेश्चंस कैसे हो सकते हैं? ओपन टू क्लोज हो सकते हैं। जैसे तो आपको स्केल के बेसिस पे डिटरमिन करना होगा कैसे क्वेश्चंस होंगे। we will have to not assume that respondents have the information, knowledge, views. Dichotomous questions होते हैं जो yes और no होते हैं, जैसे अभी मैंने बताया, do you invest in stock market? Yes or no. Multiple choice where many responses can be selected, rating scales, odd even numbers. Open-ended questions जैसे last में लिख देते हैं ना, do you have any other feedback to share? What is your perspective on this? These are open-ended, जहां पर हमें नहीं पता रिस्पोंडेंट क्या आंसर कर सकता है। We feel we break free the answers to suit the respondents. जैसे उनको मन होगा वो वैसे आंसर करेंगे। जहां पर हम exactly यही 5 ऑप्शन में से चूज करना है, वो मल्टीपल चॉइस हो जाएगा। Dichotomous questions are good for clear answers and they are often better rephrased to what extent or how much type of question अगर हमें एनालिसिस करना है। तो अगर फिल्टर क्वेश्चन डालने हैं तो डाइकोटोमस डाल सकते हो आप। मल्टीपल चॉइस, they need for a pilot to gather exhaustive categories of response. मल्टीपल चॉइस तभी हो सकते हैं जब हमारे पास सारी कैटेगरीज हो।
It do not allow for range of responses. If more than one response permitted, then each choice is a separate variable. जैसे हम मान लो कोई बोल देते हैं कि आप इनमें से कोई भी, हमने 15 ब्रांड लिए आटे के और हमने बोला कस्टमर से पूछा आपकी कोई भी टॉप 5 प्रेफरेंसेस बताओ, तो 5 प्रेफरेंसेस के कई ग्रुप बन जाएंगे. So each group will become a separate variable. Yeah. These are examples of close-ended questions. What is your gender, male or female? अब इसके बाहर कोई कुछ टिक ही नहीं कर सकता क्योंकि हमने क्वेश्चनर में अलाउ नहीं किया है. Okay. These like African, what is your ethnic identification? African American, American Indian, others. Others में specify कर देगा. So there are 7 categories. These are close-ended questions. What is your age, 18 or under? जैसे हम groups की बात कर रहे थे. ये again close-ended questions. How satisfied are you with social work 292? All these are examples of close-ended questions. Okay, अब ये open-ended हो गया. What is your age? Okay. Another example, 5-point Likert scale, very likely, etc. Okay, scores. These are examples of how satisfied are you with social work. This is an example of Likert scale. Okay, where 1 represents very satisfied and 5 represents very unsatisfied or highly dissatisfied. Moving on to research questions. Okay. Yeah, just a second. So what is a research question? हम बार-बार जब stages और steps की बात कर रहे थे, we're talking about research question, research objective. अब research question और research objective दोनों में बड़ा confusion होता है, and a lot of people, a lot of academicians use both the terms interchangeably. Okay, so a research question is a clear, concise, and focused query that a researcher seeks to answer through investigation and analysis. And research question defines the scope and direction of the research study, guiding the collection or interpretation of data. So we can say a well-formulated research question is specific, it is relevant, it is measurable, and it is achievable within the constraint of the research project. कोई एक example अगर हम ले research question का, तो आप screen पर देख पा रहे हो जो research questions हैं. This is with respect to higher education and research. एक और एग्जांपल हो सकता है, हाउ डज रेगुलर एक्सरसाइज इम्पैक्ट कार्डियोवास्कुलर हेल्थ इन एडल्ट्स ओवर द एज ऑफ 50. ठीक है, ये मेरा रिसर्च क्वेश्चन है, इसको मुझे एनालाइज करना है कैसे अगर हम रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे, अगर हम जानना चाह रहे हैं क्या इम्पैक्ट होगा रेगुलर एक्सरसाइज का कार्डियोवास्कुलर हेल्थ पे, किसकी, जो एडल्ट्स ओवर द एज ऑफ 50 हैं उनकी. ठीक है, सिमिलर टर्मिनोलॉजी रिसर्च ऑब्जेक्टिव. Okay, what is a research objective? Research objectives are very specific, they are measurable, and they are achievable goals that a researcher aims to accomplish through the research study, and they outline the purpose and intent of the research, providing kind of a roadmap for conducting the investigation and reaching meaningful conclusions. So research objectives are basically, we can say, they are subset of research questions, or we can say they are derived from the research question, and they help guide the design, the methodology, and the analysis of the study. Example, अगर हम cardiovascular का example लें, या फिर जो पहले हमने example लिए थे governance structure के, so these could be the research objectives. और cardiovascular अगर हम research objective की बात कर रहे थे, तो उसके रिसर्च क्वेश्चन क्या हो सकते हैं? टू एग्जामिन द रिलेशनशिप बिटवीन रेगुलर एक्सरसाइज फ्रीक्वेंसी एंड कार्डियोवास्कुलर हेल्थ इंडिकेटर्स इंक्लूडिंग ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स इन एडल्ट एज्ड 50 एंड अबव. या फिर हम ये भी एक ऑब्जेक्टिव रख सकते हैं रिसर्च क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में, to assess the impact of different types of exercises such as aerobics and resistance training on cardiovascular health outcomes. So there could be multiple research questions for single research objective. So research objective, when broken down, research question when broken down into measurable subunits, these become research questions. Okay, so अभी इन्हीं क्वेश्चन से रिलेटेड अगर मैं आपको कुछ एग्जाम्पल स्लाइड था, तो मान लो हमारा ऑब्जेक्टिव रिसर्च क्वेश्चन ये था, हाउ हैज द गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ इंडियन हायर एजुकेशन इवॉल्व्ड, how the higher education institutions are governed and managed, how the governance and management of higher education functions at national and state level. इसी के corresponding हमारे ये research objectives थे, to discuss the evolution of governance structure and process at the state and institutional level, to study the role and functioning, to study the management of higher education. ये हमारे research objectives थे. अब इस instrument की बात करें तो हमारे stakeholders कौन कौन होंगे? Students होंगे, faculty होगी,
ठीक है, मेजर तो यही हुए। और क्योंकि हम नेशनल और स्टेट लेवल की बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली हमारे स्टेक होल्डर्स कौन हुए, जो पॉलिसी मेकिंग में है, हायर एजुकेशन बोर्ड्स, और ये स्टेट एजुकेशन बोर्ड्स हो गए, ठीक है। सो हमारा रिसर्च इंस्ट्रूमेंट्स फैकल्टी के लिए होगा, स्टूडेंट के लिए होगा, क्योंकि ये बहुत सिग्निफिकेंट और लार्जर पॉपुलेशन होगी, तो हम चाहेंगे कि जो फैकल्टी से डेटा इकट्ठा हो और जो स्टूडेंट से डेटा इकट्ठा हो वो स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनर के थ्रू हो। लेकिन अगर हम इंस्टीट्यूशनल लीडर्स की बात करेंगे कि कुछ वीसीस का हमने, तो वहां पर हम क्वेश्चनर नहीं चाहेंगे, वहां पर हम इंटरेक्शन चाहेंगे, इंटरव्यू चाहेंगे वाइस चांसलर्स का, गवर्निंग बॉडी के चेयरमैन का, रजिस्ट्रार, डीन, डिपार्टमेंट चेयर्स, क्योंकि इनका सैंपल भी छोटा में, तो या तो सेमी स्ट्रक्चर्ड हो सकता है या प्रॉपर इंटरव्यू हो सकता है। एज अगेंस्ट स्टूडेंट काउंसिल के लीडर्स का इंटरव्यू कर सकते हैं, स्टेट बॉडीज का इंटरव्यू, डायरेक्टरेट ऑफ कॉलेज एजुकेशन, स्टेट काउंसिल्स ऑफ हायर एजुकेशन, यहाँ पर क्योंकि ये कम होंगे नंबर में, इनका सैंपल, इनका टोटल पॉपुलेशन साइज भी कम है, सो वी वुड वांट टू हैव डिटेल्ड एनालिसिस, डिटेल्ड डिस्कशन विद दीज स्टेक होल्डर्स। So this will be question, ये सब हम पूछना चाहेंगे। उनका फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम कैसा है, ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म कैसा है, क्या कम्युनिकेशन अकाउंटेबिलिटी है, क्या क्वालिटी मैकेनिज्म्स है, यूजीसी की नॉर्म्स के बारे में पता है नहीं पता है। या स्टूडेंट का क्वेश्चन है, अगेन डेमोग्राफिक क्वेश्चंस होंगे ऊपर, जैसे बेसिक प्रोफाइल, फैमिली बैकग्राउंड, ये सब। फिर फैसिलिटीज के बारे में पूछेंगे, टीचिंग क्वालिटी के बारे में पूछेंगे, स्टूडेंट यूनियन के बारे में पूछेंगे, और जो क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट की बात हो रही थी, जो ओपन एंडेड इंटरव्यू की बात हो रही थी वाइस वीसीज और उन सबसे, स्टूडेंट काउंसिल लीडर से, वो सारा डेटा इकट्ठा किया जा सकता है। बार बार आई बीन रिपीटिंग लिकर्ट स्केल के क्वेश्चंस, तो ऐसे होते हैं, जैसे फैकल्टी के क्वेश्चनर में ऐसे उठाया हुआ है ये, I am satisfied with opportunities to collaborate with colleagues in my department. I am satisfied with opportunities to collaborate with colleagues in other departments. Disagree, somewhat agree. So this kind of arrangement is known as Likert scale measurement. Okay. Now moving on, let's come to a very important concept, that is reliability and validity. Okay. So I will be sharing another presentation for this. ओके, ये सब हम बात कर चुके हैं, ठीक है। अब जब हम बात करते हैं रिलायबिलिटी और वैलिडिटी की, सो जस्ट अ मिनट, या ठीक है। सो अगर हम लोग रोजमर्रा की लाइफ के बारे में बात करें, सो वी यूज probability to describe how something is valid. दोनों बड़े interchangeable terms हैं, पर रिसर्च की और टेस्टिंग की बात करते हैं, so reliability and validity are not the same things. In fact, evidence-based practices includes in part implementation of the findings of well-conducted quality research studies. So being able to critique quantitative research is an important skill for researchers. And considering